सावधान! Honorable Speaker, ma'am, please. Overtaking Mr. Babu Nayak, who stands unelected from Sambalpur constituency of Odisha, will now take oath or an affirmation. Sir, do you want to take oath or affirmation? Oath, please. In which language would you like to take the oath? In English, please. I, Mr. Babu Nayak, having been elected a member of your parliament, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Ms. Ganashmita Sahu, who is elected from Sundargarh constituency of Odisha, will now take oath or affirmation. महोदय, आप शपथ ग्रहण करेंगी या प्रतिज्ञा लेंगी? मैं प्रतिज्ञा लेना पसंद करूंगी। आप किस भाषा में प्रतिज्ञा लेना चाहेंगे? मैं हिंदी में लेना चाहती हूँ। मैं गणस्मिता साहू ओडिशा के सुंदरगढ़ निवास संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुई हूँ। सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा संविधान के प्रति श्रद्धा रखूंगी तथा देश के प्रभुसत्ता और एकता को बजाय रखूंगी तथा जिस पद को ग्रहण करने वाली हूँ इसका श्रद्धापूर्वक निर्वाह करूंगी। obituary reference. Honorable members, as we today, it is my sad duty to inform the House, the noble soul, great speaker, the unchallenging leader, our former member of the Parliament, Vijay Ranjan Singh Bhaiya, passed away on 1 November 2020, leaving on the countryman shocked and sad. With him, we have also lost a great spirit who was always eager to lead the country. His death is a great loss for us. I pray to God may his soul rest in peace. Honorable Madam, I rise to pay my tribute to Sri Vijay Ranjan Singh Bharta, whose death has been deeply noted by all. He was a great parliamentarian and an equally great poet too. He was devoted to the upliftment of the poor and he always worried about the welfare of the tribal people. He sacrificed his whole life for the upliftment of the nation in the whole world. He was definitely the best former minister our country has ever witnessed. We and our nation feel very proud of him. We had lost our best guide. I deeply mourn the sad demise of the great politician and fair parliamentarian. I pray to God and offer my respects and deep condolences to the bereaved family members. माननीय सभापति महोदय, मैं आगे पद सदन के अन्य नेताओं द्वारा दी गई श्रद्धांजलि में अपने आप को सहयोगी करना चाहता हूँ। विजय रंजन सिंह बरिया के वरिष्ठ नेताओं में से एक थे। उनका मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता रहता था। उन्हें संसदीय प्रणाली का विशद अनुभव था। वे वरिष्ठ नेताओं में से एक थे जिन्हें दलगत राजनीति में सदा ऊपर रहे। तभी तो विपक्ष में रहकर भी देश के संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधित्व कर गए। वे देश के सच्चे सुपुत्र थे। आज उनके देहांत पर देश में एक शून्यता का आभास होता है। मैं ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूँ कि वे उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें तथा उनके परिवार को इस दुख से उभरने की शक्ति दे। And now, I request the members to kindly pay a tribute to the soul of the respected late Vijay Ranjan Singh Bharta by standing and keeping silence for a while, and also pass resolutions which they
of new ministers. Prime Minister to introduce the new ministers. Honorable Madam, may I please have the opportunity in introducing to you and to the House and my colleagues the new ministers, Ms. Bhagyashree Naik, Minister of State and Agriculture, and Mr. Lincoln Gurna, the Minister of Information and Broadcast. Question hour. Now, the question hour starts. Question number 101, Mr. Shivendra Singh, please. माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री महोदय सदन को भारत में सड़कों के विस्तार के लिए उठाए जा रहे कुछ नए कदमों व कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देंगे? सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष के नेता शिवेंद्र जी को बताना चाहूंगी कि हमारी सरकार सड़कों के विस्तार के लिए बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है, क्योंकि सड़कें ही आर्थिक विकास की पूंजी हैं। प्रथमतः राजमार्ग निर्माण के लिए योजना 26 किलोमीटर के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मंत्रालय के इतिहास में पहली बार मासिक कैलेंडर बनाया गया है, जिसमें किस महीने में कितनी परियोजनाओं के अंतर्गत कितनी सड़कें बननी हैं, उसका खर्च समेत पूरा ब्यौरा दर्ज है। देरी से चल रही मेगा परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए अधिकारियों को फास्ट ट्रैक योजना पर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे सत्ता पक्ष की नेता अनन्या बेसी जी से पूछना चाहता हूं कि वह यह बताने का कष्ट करेंगी, यदि पहले से ही परियोजनाएं धीमी गति से चल रही हैं तो रोजाना 26 किमी का लक्ष्य कैसे हासिल किया जा सकता है? सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर 2 साल तक हम 2345 किलोमीटर टेंडर करते रहे तो 26 किलोमीटर रोजाना का लक्ष्य आसानी से हासिल किया जा सकता है। हम इस सरकार के कार्यकाल के समाप्त होने से पहले इस देश की जनता को बता देंगे कि प्रधानमंत्री ने जो 26 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क निर्माण का वादा किया था, हमने उसे पूरा कर दिखाया। Supplementary question, Mr. Priyavrata Mishra, please. माननीय अध्यक्ष महोदय, राजमार्ग मंत्रालय एक मलाइका विभाग माना जाता है, क्या निविदा प्रक्रिया में भ्रष्टाचार नहीं होगा? सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सम्माननीय सदस्य की बात से सहमत हूँ कि पहले कुछ लोग गिरोह बनाकर ठेके हासिल कर लेते हैं और इससे भ्रष्टाचार होने की काफी संभावना रहती थी और कार्य भी धीमी गति से होता था, परंतु अब हमने विभाग के सभी जगह को पहले से ही ऑनलाइन कर दिया है। हमने गूगल अर्थ के साथ मिलकर अक्टूबर से GIS प्रणाली शुरू करने का ऐलान किया है। इसके जरिए नक्सल प्रभावित और ग्रामीण इलाकों की परियोजनाओं की निगरानी के साथ साथ जमीनी स्तर पर होने वाले कार्यों में भी पारदर्शिता आएगी। Mr. Anand Kumar Sahu, please. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री अनन्या बेसी से यह पूछना चाहूंगा कि ट्रेन प्लाजा पर होने वाले समय एवं ईंधन की बर्बादी से बचने के लिए आपका मंत्रालय क्या उपाय कर रहा है? सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री। अध्यक्ष महोदय, टोल प्लाजा पर होने वाले समय एवं ईंधन की बर्बादी से बचने के लिए इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। इसके लिए MIC नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर की DGD के नेतृत्व में कमेटी गठित कर दी गई है। महोदय, इस तकनीक में देश भर के सभी टोल प्लाजा को एक सर्वर से जोड़ा जाएगा और टोल से गुजरने वाली सभी सड़कों पर टोल से गुजरने वाली सभी गाड़ियों पर एक चिप होगी, जिसे मोबाइल की तरह रिचार्ज करवाया जा सकेगा। Supplementary question,
Honorable Speaker Madam, I would like to know from the Minister of Road and Transport that as the expansion of roads is necessary for the development of country, conservation of environment is also essential. In this regard, what is your ministry doing? Minister of Road and Transport, please. Honorable Speaker Madam, the road contractors have been strictly instructed to ensure that the rainwater should go deep in the earth while constructing roads. They have also सभापति महोदय, जिन राज्यों में सत्तापक्ष का शासन है, वहाँ पर सड़कों के रखरखाव के लिए सरकार भरपूर वित्तीय मदद कर रही है, परंतु विपक्ष से शासित राज्यों के लिए भेदभाव क्यों कर रही है? केवल तार्किक प्रश्नों के उत्तर सदन में दिए जाएंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं राजनीतिक बयानबाजी नहीं करूंगी। अगर किसी के पास सच में ऐसी कोई शिकायत है तो मेरे पास लाएं, मैं उसका जवाब दूंगी। Question number 102, Ms. Purvi Dhuk, please. Honorable Speaker Ma'am, will the Minister of Finance be pleased to state whether the new notes of Rs 2,500 seized by the Enforcement Directorate, Income Tax Department and other agencies have come back circulation? If so, the details thereof and the reason therefore, whether the enforcement agencies have sufficient number of officials to identify the black money holders and conduct seizure operation, and if so, the details thereof. Minister of Finance, Mr. Zamedia, please. Honorable Speaker Madam, a statement is laid on the table of the House. Yes ma'am, all union currency notes of rupees 2,000 and 500 denominations seized by Enforcement Directorate are deposited in the State Bank of India or any nationalist bank so that they come back in circulation. The Income Tax Department deposits the cash seized during its search and seizure action in the public deposit account maintained with nationalized bank at the earliest. The details of new currency seized on the table as follows: IT Department 110 crore, ED 4.54 crore, CBI 26.21 crore, and DRI 0.38 crore. All the government agencies including ED, CBI, IT Department, and Directorate of Revenue Intelligence have backed India presence with requisite official posted in headquarters, various zonals and regional units to conduct action against black money holders. माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जवाहर नवोदय विद्यालयों में प्रवर्तन नीति का क्या उद्देश्य है? क्या यह नीति अपने उद्देश्य में सफल है? यदि हाँ, तो सरकार इस संबंध में क्या उपाय कर रही है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी विपक्ष दल की नेता संचिता जी को यह बताना चाहता हूं कि जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूली क्षेत्रों में सबसे बड़ा संस्थान है। इसकी नीति का टारगेट यह है कि इसको राष्ट्रीय स्कूल की संस्था को मजबूत करने तथा संस्कृतियों का पारस्परिक आदान प्रदान करना है। मैं इनको यह भी बताना चाहता हूं कि यह नीति अपने उद्देश्य में काफी हद तक सफल हो गई है, लेकिन जब कभी भी किसी भी स्थानीय कारणों के द्वारा इसकी नीति में कोई भी प्रभाव आता है तो उन स्थानीय कारणों को ज्ञात कर उसका समाधान कर दिया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री से यह बताने की कष्ट करेंगे कि क्या सरकार का नवोदय विद्यालय का स्नातक स्तर तक उन्नयन करने का प्रस्ताव है? यदि हाँ, तो संबंधी ब्यौरा क्या है? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है? और नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय और अन्य विश्वस्तर इकाइयों का अकादमिक निष्पादन तथा गत 3 वर्षों के दौरान छात्रों की नियंत्रणा का ब्यौरा क्या है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने सम्माननीय विपक्ष दल की नेता
नेता को ये बताना चाहता हूँ कि यह इस प्रश्न में प्रश्न क से ग तक का जवाब यह है कि जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6वीं से 12वीं तक ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को गुणवत्तापूर्वक आधुनिक शिक्षा प्रदान करने का काम करती है। प्रश्न घ का जवाब यह है कि पिछले 3 वर्षों में जवाहर नवोदय विद्यालयों ने केंद्रीय विद्यालयों, केंद्रीय तिब्बती विद्यालयों और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के समक्ष अन्य विद्यालयों के तुलना में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। इसके पेपर टेबल पे रखे हुए हैं। Honorable Speaker, ma'am, will the Minister of Defence be pleased to state question number 1, when the government has taken note of new question number B, if so, the details thereof, and question number C, the action taken by the government in this regard. Honorable Speaker, Madam, Pakistan has occupied Jammu and Kashmir since 1971. Our government has repeatedly putting this matter in UNO and SARS. Jammu and Kashmir has been divided into 2 union territories, Ladakh and Jammu, and is under our direct control now. As Defence Minister, I have kept an eagle eye on this matter. Supplementary question, Mr. Anand Kumar Sahu, please. Honorable Speaker, ma'am, whether the government has database of families of employed, female personnel and its own details thereof. Question number B, the details of compensation, including employment provided to next of kind of this sector during the last 2 years and the current state and year myself. Question number C, whether the government proposed to provide income compensation to the families of all employees in respective branch or battalion of the force they belong to, and if we show the details thereof. Minister, Mr. Anand Sahu, please. Honorable Speaker, Madam, A to C, the statement of this matter is live on the table of this House. The number of war widows registered with the General Sainik Welfare is at Annexure 1. As it is, the information on compensation payable to the next of kin of the authority is placed as Annexure 2 out of total reserve for whoever widows or disabled personnel. Ms. Prajoti Goy, please. Honorable Speaker, ma'am, will the Minister of Defence be pleased to state whether the government has paid attention towards rise in cyber attack in the defence sector during the recent years? If so, the details thereof. Whether the government has taken adequate steps to protect confidential information pertaining to the defence sector from cyber attack, and if so, the details thereof. Honorable Speaker, Madam, today our defense system also depends on the cyber system. So we have developed our own system. We have assured 100% security. As it is an indigenous system, the overall threat is highly safe and reliable. Yes, Madam, the overall threat to cyberspace has increased, though no cyber attacks have been reported. We are giving our best to safeguard our country's security. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहती हूँ कि क्या खाद्य एवं कृषि मंत्री इस तथ्य से अवगत हैं कि टमाटर के मूल्य में बेतहाशा वृद्धि हो रही है तथा टमाटर का मूल्य 80 से 100 रुपए किलो पर पहुँच गया है? यदि हाँ, तो सरकार टमाटर की मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए क्या उपाय कर रही है? क्या सरकार टमाटर के मियाद पर रोक लगाने के लिए कोई उपाय कर रही है? महंगाई को देखकर दुखमय सकल समाज निर्बल जन जीना कठिन कैसे साधे काज कहाँ से लाए राशन, महंगी भाई टमाटर पकेगा कैसे साधन। माननीय अध्यक्ष महोदया, टमाटर की मूल्यों में हो रही वृद्धि की जानकारी सरकार को है। टमाटर की कीमतों पर नियंत्रण लगाने के लिए सरकार कई उपाय कर रही है।
अब मैं सदन को यह भी सूचित करना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ एवं देश के अन्य बहुत से राज्यों में इस वर्ष टमाटर की बम्पर पैदावार होने की संभावना है, जिससे टमाटर के कीमतों पर सुधार आ सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि भारतीय रेलवे द्वारा अपने यात्रियों को जो भोजन दिया जाता है उसकी गुणवत्ता में काफी गिरावट आई है। मीडिया के माध्यम से यह ज्ञान हुआ है कि भोजन स्वाद और सेहत के नजरिए से परे तो है ही, मगर चिंतित करने वाली बात यह है कि उसमें कॉकरोच तथा कीड़े मकोड़े भी पाए गए हैं। यह एक गंभीर समस्या है। हमें यह भी ज्ञान हुआ है कि कीमत के अनुरूप प्रति व्यक्ति इसकी मात्रा भी कम है। मंत्री जी, इस तरह से लोगों की सेहत से खिलवाड़ न हो तथा साथ ही यात्रियों को कीमत के अनुरूप उचित मात्रा में भोजन मिले, इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय सांसद जी को अवगत कराना चाहता हूं कि मुझे मीडिया के माध्यम से व विभागीय जांचों से यह ज्ञात हुआ है कि विगत समय में रेल यात्रियों हेतु उपलब्ध भोजन की गुणवत्ता में कमी आई है। विषय में गंभीरता के दृष्टिगत मैंने संज्ञान लिया और तुरंत ही खाना टेंडर मालिकों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उन पर अर्थदंड लगाया। वह भविष्य में संबंधित टेंडर मालिकों से खाने की गुणवत्ता एवं उसकी समुचित मात्रा पर विशेष ध्यान देने के आदेश पारित कर दिए। इसके अलावा यदि कोई भी व्यक्ति या यात्री हमें कोई भी सुझाव देना चाहता है तो वो रेलवे के मोबाइल ऐप पोर्टल के द्वारा अपने सुझाव दे सकते हैं। हम हर सुझाव का स्वागत करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदया, क्या रेल मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि बुलेट ट्रेन की कब आरंभ होने की संभावना है और इसके संचालन हेतु वास्तविक समय सीमा क्या है? क्या सरकार ने अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना के अतिरिक्त किसी अन्य बुलेट ट्रेन परियोजना को स्वीकृति दी है अथवा स्वीकृति देने की योजना है? व्यवहारदा की रिपोर्ट में मुंबई अहमदाबाद उच्च गति रेल परियोजना के पूरे होने का लक्ष्य 2023 दर्शाया गया। बहरहाल इसे 2022 में पूरे होने के संबंध में प्रयास करने के निर्देश दिए गए हैं। इस समय केवल मुंबई से अहमदाबाद उच्च गति रेल परियोजना है। इसके अतिरिक्त सरकार ने उच्च गति रेल के व्यवहारता अध्ययन के लिए 4 प्रमुख मेट्रो और देश के विकास केंद्रों को जोड़ने वाले निम्न मार्गों की पहचान की है, जो दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से कोलकाता, मुंबई से चेन्नई और चेन्नई से बेंगलुरु तक। माननीय सभापति महोदय, मैं सामाजिक न्याय एवं महिला सशक्तिकरण मंत्री से यह पूछना चाहता हूँ कि हमारे देश में गैर संवैधानिक पंचायतों कुछ राज्यों में बहुत अधिक हस्तक्षेप है, जिसके कारण समाज में ऑनर किल जैसे और समस्याएं उठ रही हुई है। मैं जानना चाहता हूँ ऐसी पंचायतों पर रोक के लिए हमारी सरकार कौन से ठोस कदम उठा रही है? माननीय अध्यक्ष महोदय, खास पंचायत संवैधानिक नहीं है और इसके निम्न मानव अधिकार और महिला अधिकार का उल्लंघन करते हैं। अतः केंद्र सरकार ने इस प्रकार की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए सभी राज्यों से प्रमुख सचिवों और पुलिस प्रमुखों की बैठक बुलाई है और इसके पश्चात सरकार द्वारा विचार विमर्श करके असंवैधानिक उल्लंघन के मामले पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। महोदय, कहने के लिए तो हमारे समाज में स्त्रियों को पुरुष के समान अधिकार प्राप्त है, परंतु वास्तव में देखा जाए तो ये केवल कहने के लिए है। वास्तविकता एकदम इसके विपरीत ही है, क्योंकि आज भी स्त्री समाज में स्त्रियों को स्वेच्छा से घूमना फिरना एवं स्वेच्छानुसार अपना जीवन साथी चुनने तक में स्वतंत्र नहीं है। तो ये कैसा समानाधिकार है? माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार को इस संबंध में पूरी जानकारी है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ इलाके में खास पंचायतों द्वारा अपने और अपने परिवार के झूठे सम्मान के नाम पर अपने ही बच्चों की हत्या करते हैं।
इसलिए अपने समाज में लड़कियों को घर से बाहर नहीं जाने देते तथा अपने जीवन साथी को वो खुद नहीं चुन सकती हैं। माननीय सभापति महोदया, मैं एक प्रश्न से यह पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान श्री महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने भारत को T20 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी दिलाई है, तो क्या सरकार श्री महेंद्र सिंह धोनी को भारत रत्न देने पर विचार नहीं कर सकती? माननीय सभापति महोदया, कला, साहित्य, विज्ञान और खेल के क्षेत्र में भारत के लिए अतुलनीय योगदान देने वाले व्यक्ति को ही भारत रत्न दिए जाने का प्रावधान है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान श्री महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने भारत को वर्ल्ड कप दिलाया है, निश्चित रूप से आने वाले समय में श्री महेंद्र सिंह धोनी सहित उन सभी हस्तियों को जिन्होंने विभिन्न खेलों में हमारा गौरव बढ़ाया है, उन्हें उचित सम्मान से नवाजा जाएगा। धन्यवाद। Honorable Speaker Madam, a serious speech of today has been carried by the leading discussor of study while commenting on the recommendation of the Public Accounts Committee. The paper has executed dishonest motive and the request is allowed me to raise the question on the matter now. Have you given notice of it earlier? You may give due notice along with a copy of newspaper cutting and I shall consider it. You cannot spring a surprise on me like this. I have already given the notice of it at 10 a.m. today. It will be examined when it comes to me and I shall consider it and let you know my decision. Now, papers to be laid. Papers to be laid on the table. Now, papers to be laid. Honorable Minister of Finance, Mr. Dharmendra, please. Honorable Speaker Madam, I beg to lie on the table a copy of each of the following notification under Section 3 of the Banking Regulation Act 1999. First, review of the government on the working of the bank, including the cooperative bank. Second, report of the performances and credit report of the cooperative bank in India 2022 to 23. Welcome to foreign delegates. Welcome to French Parliament delegation. Honorable members, I have to make an announcement on my own behalf of the House. I have a great pleasure in extending a warm welcome to the members of French Parliament delegation. August Dash, Aryan Pradhan. This high-power delegation arrived on 11 November 2020. They are now seated in a special box. We wish them a comfortable, happy and a fruitful stay in our country. We also extend our greetings and every best wish to them, to the Prime Minister, the French Parliament, the government and the friendly people of France. Message from the upper chamber. Secretary General to report message from the upper chamber of the Youth Parliament. Honorable Madam, I have to report the following message received from the Secretary of the Upper Chamber of the Parliament. I, in accordance with the provisions of the Parliament, I am directed to enclose a copy of the representation of People Amendment, which has been passed by the Upper Chamber at its sitting held on March 2018. Secretary General to lay on the table a copy of the bill as passed by the upper chamber. Now, short resolution discussion under Rule 193. Mr. G. Gordon, please. माननीय सभापति महोदय जी, इस सरकार के रहते देश में हमला कहीं पर भी हो सकता है। अतीत में हमला कर चुके लोगों को सजा दिलाने में इस सरकार की नाकामी इसे और कमजोर बना देने
आतंकवाद मानव अस्तित्व के लिए एक गंभीर चुनौती है। फिर भी दुनिया का कोई भी देश आतंकवाद से मुक्त नहीं है। सिर्फ यही नहीं, दुनिया में आतंकवादों की घटनाएं निरंतर बढ़ रही हैं। महोदया जी, आज भारत आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। भारत की दुनिया में बढ़ती हैसियत को देखकर एक विशेष पड़ोसी देश पाकिस्तान का सहारा लेकर भारत में अशांति फैलाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। महोदया जी, भारत में आतंकवाद नक्सलवाद के रूप में भी है। भारत में नक्सलवादी पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में अपनी कार्यवाहियों को अंजाम दे रहे हैं। इन संगठनों को पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी ISI के अलावा नेपाल और दूसरे पड़ोसी देश से धन और हथियारों की व्यापक आपूर्ति हो रही है। हमारी सरकार देश में बढ़ रही आतंकवादी व नक्सलवादी घटनाओं को लेकर चिंतित है और इसे रोकने के लिए कई उपाय कर रही है। Honorable Speaker Madam, our intelligence agencies sadly failed on the vigilance on internet and cyber war. IB, RAW, DIA, and TRO also failed to find out the role of Pakistan in the cyber war that broke out after Assam violence. Even they proved useless to inform the government in the time about the discussion on social media against this violence. महोदया, यह सच है कि राष्ट्र विरोधी तत्वों ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल भड़काऊ सामग्री प्रसारित के लिए किया है। सरकार ने अब सोशल मीडिया के माध्यम से राष्ट्र विरोधी तत्वों को रोकने के लिए कृत संकल्प किया है। हम बिना किसी निजता का उल्लास किए हुए ऐसे रास्ते की तलाश कर रहे हैं जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा राष्ट्र विरोधी तत्व पर रोक लगाया जा सके। सरकार का डिजिटल इंडिया प्रोग्राम भी इस उद्देश्य के साथ जुड़ा है। Bill introduced अब सदन खाद्य सुरक्षा विधेयक पर विचार करेगा। मंत्री महोदया, माननीय अध्यक्ष महोदया, मैंने देश के अनेक हिस्सों में भूख से हुई मौतों का जायजा लिया है। मेरी राय है किसी का भूखा मरना निर्बाध रूप से एक गरीब लाचार इंसान की हत्या है। इसलिए देश की एक बड़ी आबादी को खाद्य सुरक्षा देने के लिए सरकार माननीय सदन के सामने इस विधेयक को लाई है। इस विधेयक के कुछ निम्न प्रमुख बातें हैं। इस विधेयक के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों से 75% व शहरी परिवारों से 50% को अधिनियम के दायरे में लेने की सरकार की योजना है। सभी परिवारों के 2 श्रेणियां प्राथमिकता व सामान्य में विभाजित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के 75% लक्षित परिवारों में से 46% प्रायोरिटी हाउसहोल्ड होंगे, जबकि शेष जनरल हाउसहोल्ड की श्रेणी में आएंगे। शहरी क्षेत्रों में 50% लक्षित में 28% प्रायोरिटी हाउसहोल्ड होंगे, जबकि शेष जनरल हाउसहोल्ड की श्रेणी में आएंगे। प्राथमिकता वाले परिवारों के प्रति व्यक्ति को 7 किलो अनाज प्रति माह अत्यधिक रियायती मूल्य पर उपलब्ध कराने का प्रावधान इस विधेयक में किया गया है। अध्यक्ष महोदया, मुझे पूरा विश्वास है कि इस सदन के माननीय सदस्य दलीय मतभेदों को भूलकर इस विधेयक का स्वागत करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करती हूँ कि खाद्य सुरक्षा विधेयक पर विचार किया जाए। प्रस्ताव पेश किया गया कि निर्धनों को अत्याधिक रियायती मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराकर देश में खाद्य सुरक्षा विधेयक पर विचार किया जाए। मिस खेमलता प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदया, यह सवाल है कि क्या एकदम कम मूल्य पर गरीबों को अनाज उपलब्ध करवा देना ही देश की जनता की खाद्य सुरक्षा मुहैया करवाना है।
उन्हें खाद्य सुरक्षा उपलब्ध है। इस दृष्टि से प्रभावित खाद्य सुरक्षा अधिनियम एक अपर्याप्त उपाय है, इसलिए मैं इसका विरोध करती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत में 38 करोड़ लोगों को भूखे पेट सोने में मजबूर है। भारत में भूखे तथा भूसुत की संख्या अमेरिका की कुल आबादी के बराबर है। अध्ययन के अनुसार 5 वर्ष आयु से कम 44% बच्चों को भोजन जरूरत से कम है। सभी लोगों को सटीक परिमाण में खाद्य मिले, यही इस विधायक का पूर्ण तथा पवित्र उद्देश्य है। मैं विधायक जी को समर्थन करता हूँ। Honorable Speaker, Madam, this bill will prove best to fight against starvation, but in India, the cause of food insecurity is the more and more poverty. The income of people is very less, basic agricultural infrastructure is very weak, PDS is polluted, and according to the government of our country, there is no sufficient facility for agricultural research. In the last 2 years, citizens have been provided with RTI, RTE, and MANREGA. On the same basis, citizens should be given food rights, not food security, which is not in this bill. That's why, Honorable Speaker, Madam, I cannot support this bill as a present draft. माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं उन सभी सदस्यों के आभारी हूँ जिन्होंने इस विधायक का समर्थन किया है। मैं उनकी भी आभारी हूँ जिन्होंने इस पर एक रचनात्मक आलोचनाएं की हैं। हाल ही में नंदी फाउंडेशन ने देश में बच्चों के स्वास्थ्य पर एक अध्ययन किया है। इसमें कहा गया है कि देश में 5 वर्ष से कम उम्र के 44% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 33% पुरुष और 36% महिलाओं का इस श्रेणी में रखा गया है। सच्चर समिति की रिपोर्ट कहती है कि अल्पसंख्यकों की हालत भी खराब है। इसका मतलब यह है कि हमारे देश का बड़ा हिस्सा भूखमरी का शिकार है। इसलिए मैं इस विधेयक को सदन में पास करने की सदन से निवेदन करती हूँ ताकि हमारे भारत में कोई भी भूखा ना सोए। निर्धनों को अत्याधिक रियायती मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराकर देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा विधेयक पर विचार किया जाए। जो इसके पक्ष में है हाँ कहेंगे, जो इसके पक्ष में है नहीं कहेंगे। मेरा विचार है कि हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है। अब प्रश्न है कि खंड 2 से 10 तक विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है हाँ कहेंगे, जो इसके पक्ष में है नहीं कहेंगे। मेरा विचार है कि हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है। खंड 2 से 10 तक विधेयक का अंग बन चुके हैं। अब प्रश्न है कि खंड 1 अधिनियम सत्र तथा विधेयक का शीर्षक अंग बने। जो इसके पक्ष में है हाँ कहेंगे, जो इसके पक्ष में है नहीं कहेंगे। मैं समझती हूँ कि हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है। महोदया, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि इस विधेयक को पारित किया जाए। प्रस्ताव पेश किया गया कि विधेयक को पारित किया जाए। जो इसके पक्ष में है हाँ कहेंगे, जो इसके पक्ष में है कृपया नहीं कहेंगे। मैं समझती हूँ कि हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन। Honorable members, I have received a notice stating no confidence in our Council of Ministers. I have sufficient inquiry and find it to be in order. I therefore call upon members of opposition, Mr. Chakradhar Pradhan, Ms. Purvi Dhruv, Ms. Vaishali Vedha, Mr. Tejas Sahu, to seek the permission of the House to state it. Dear opposition, Mr. Chakradhar Pradhan, please. माननीय सभापति महोदया, मुझे किसी कारण हेतु अविश्वास प्रस्ताव सदन में रखने की अनुमति दें। श्री चक्रधर प्रधान ने सरकार से अविश्वास प्रस्ताव को सदन में रखने की मांग की है। अतः जो प्रस्ताव के पक्ष में है कृपया अपने हाथ खड़े कर लें।
महोदय, यह सरकार जुल्माशाही कर दी है। प्रधानमंत्री ने युवाओं, किसानों और दलितों को नजरअंदाज कर कारोबारियों को फायदा पहुंचाया है। ये सरकार ने सिर्फ जुल्मे दिए है। पहला जुल्मा था हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए वहांगे। दूसरे जुल्मे के अनुसार हर साल 4 करोड़ लोगों को रोजगार का था। हकीकत तो यह है कि सिर्फ 4 लाख लोगों को ही रोजगार मिला। ये सच्चाई है जुल्मे की। इसी तरह नोटबंदी का मैसेज भी अचानक ही आया था। इनके अनुसार नोटबंदी का एक्शन कालेधन के खिलाफ दिया गया। इन्हें शायद यह ज्ञान नहीं था महोदय कि किसानों, मजदूरों और गरीबों का धंधा कैसे चलता है। उल्टा ये कहते हैं कि ये सरकार, ये देश के चौकीदार है। बल्कि मुझे तो लगता है कि ये सरकार चौकीदार से ज्यादा उद्योगपतियों के भागीदार ज्यादा लगते हैं। महोदय, इस सरकार ने बहुत से बड़े कॉर्पोरेट कार्य माफ किए हैं। इन्होंने जैसे 15 से 20 बड़े कॉर्पोरेट कारोबारियों के 2.5 लाख करोड़ का कर्ज माफ किया है, परंतु इन्होंने किसानों का कोई कर्ज माफ नहीं किया। क्या इसीलिए क्योंकि किसान सूट बूट नहीं पहनते? साथ ही आए दिन देखा जा रहा है कि पूरी दुनिया में पेट्रोल का दर बढ़ता जा रहा है, पर हमारे देश में क्यों इसका दर खाली बढ़ता ही जा रहा है। महोदय, हमारी सरकार ने हजारों विमानों का सौदा 520 करोड़ प्रति विमान में किया था, किंतु हमारे प्रधानमंत्री साहब जब फ्रांस गए तो फिर अचानक से इसका दर बढ़कर 1600 करोड़ का हो गया। साथ ही इस सरकार के शासनकाल में तो बैंक से धजियाती उड़ गई है। स्विस बैंक का काला धन बढ़ता जा रहा है, लेकिन सरकार का मानना है कि ये काला नहीं सफेद धन है। नोटबंदी के दौरान सरकार ने अपने देशवासियों का धन काला धन मानकर घरों से निकलवाया था। हैरानी की बात तो यह है कि हमारे वित्त मंत्री साहब ने खाली बोला था कि काला धन है, पर काला धन आया कैसे इसके आंकड़ों का कोई अता पता नहीं है। अतः महोदय, मेरा मानना यह है कि यह पार्टी के संसद को गोलपोस्ट संभालने के लिए बोला गया है। जहां पर प्रधानमंत्री सवाल करते हैं, वो सांसद गोलपोस्ट लगा देते हैं। Mr. Tejas, please. माननीय सभापति महोदय, इस सरकार को नागरिकों के जान माल की परवाह बिल्कुल भी नहीं। रेलवे की तो भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। यदि दुनिया के 8वां आश्चर्य के लिए मतदान दिया जाए तो मुझे पूरी उम्मीद है कि दुनिया का 8वां आश्चर्य भारतीय रेलवे ही होगा। सरकार के लापरवाही व अवमानना के चलते भारत सरकार का यह सबसे सार्वजनिक उपक्रम आज खस्ता हालत में। जर्जर रेलवे ट्रैक, पुराने इंजनों से चलती गाड़ियां, लचर सिग्नल व्यवस्था, ट्रेनों में बढ़ती लूटपाट व बलात्कार की घटनाएं ने नागरिकों के मन में अज्ञात भय व्यक्त किया है कि वे अपने गंतव्य तक वापस लौट पाएंगे नहीं। आज रेलवे 1.2 की रिक्तियां हैं, जिनमें से आधी से ज्यादा गैंगवारों की हैं। वरिष्ठ क्षेत्रफल में भी सुरक्षा की देखरेख करने वाले सदस्यों का पद 1 साल से रिक्त पड़ा है। अतिरिक्त सदस्यों और 6 क्षेत्रीय महाप्रबंधक के पद भी आज कई महीनों से रिक्त पड़े हैं। रेल मंत्री जी का अधिकतर समय तो मुंबई में ही चले जाते हैं। फूलों से नहीं कहूंगा चमन के लिए, कांटों से नहीं कहूंगा चुभन के लिए। फूलों से नहीं कहूंगा चमन के लिए, कांटों से नहीं कहूंगा चुभन के लिए, पर आपसे जरूर कहूंगा थोड़ा वक्त निकालिए अपने वतन के लिए, थोड़ा वक्त निकालिए अपने वतन के लिए। प्राइम मिनिस्टर प्लीज। सभापति महोदय, कितने आश्चर्य की बात है कि एक चुनी हुई सरकार जो इतनी सारी अपेक्षाओं पर उतर रही है, देश निरंतर प्रगति के रास्ते पर बढ़ रहा है, जनता में विश्वास का भाव देखा जा रहा है। एक ऐसी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को दिया जाना विपक्षी दलों की कुटी को दिखाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने सड़क निर्माण के क्षेत्र में गांव को जोड़ने और रेलवे में पटरी नवीकरण से विकसित हो
अपराधीकरण